and sisters, as I'm over here, good morning. और भाइयों और बहनों, आपको शुभ संध्या और यहाँ पर सुप्रभात। Yeah. Are you ready? क्या आप तैयार हो? Oh, yes. ओ हाँ। Oh, one more time. Are you ready? क्या आप तैयार हो? Oh, ha. ओ हाँ। All right. Well, as we shared with you, my name is Christy Kraus, and I'm the executive director of Equip and Grow. और जैसे आपके साथ में बांटा गया कि मेरा नाम है क्रिस्टी क्राउस और मैं इक्विपमेंट ग्रो की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। I have been working in children's ministry for 36 years, and I have found that if anything, there's always a lot of pain. और मैं बच्चों की सेविका में पिछले 36 साल से काम करती रही हूँ और मैंने ये पाया है कुछ और नहीं तो काफी दर्द भी शामिल है इसमें। Many of you know some of my stories. I've got so many painful stories. और हमें से कई लोग जानते हैं मेरे कुछ कहानियों के बारे में, मेरे कितने सारे दर्दनाक कहानियां रहे हैं। Right from uh, being so poor, we only had potatoes to eat, और वो कहानी जहाँ पर हम इतने गरीब थे कि हमारे पास सिर्फ आलू ही थे खाने के लिए, to fighting breast cancer and coming out cancer free, और जो है स्तन कैंसर से लड़ते हुए पूरी तरह से आजाद निकल कर आई हूँ। and then betrayals and trust issues, right? And difficulties that are emotional. और जो धोखे की बात है और भरोसे से जुड़ी हुई बात और ऐसे विषय जो बहुत ही भावनात्मक भावनाओं से जुड़े हुए हैं। So in this summit, we are speaking directly to children's ministry workers, although this pain is the same for everyone who serves in the kingdom of God. There's pain. तो इस सम्मेलन में हम देखते हैं कि खास करके बच्चों के बीच कार्य करने वाले उन सेवकों के लिए हम ये एक बात कर रहे हैं, लेकिन वैसे देखें तो सभी परमेश्वर के राज्य के सभी क्षेत्रों में सेवा के करते समय दर्द शामिल है। All right, I'm going to share my screen if I can. Let's make sure this all works out here. मैं अपना स्क्रीन जो है अभी मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ, देखने के लिए सब कुछ ठीक ठाक काम कर रहा है, काम कर रहा Are we है। looking? Can we see it correctly? यस, हम Good. देख पा Okay. रहे हैं जी। No pain, no gain. Your legacy is worth it. और कष्ट नहीं तो फल नहीं, आपकी विरासत मूल्यवान है। So our scripture for today is Hebrews chapter 12, verses 1 and 2. And I'll go ahead and read it in English and then you can do it in Hindi. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. आज के लिए हमारा वचन इब्रानियों का 12वां अध्याय 1 से 2 वचन। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। And God is using this analogy of sports when he brings in here in the book of Hebrews this analogy of running a race. और परमेश्वर यहाँ पर जो इब्रानियों की किताब में जो है दौड़ का जो खेल का जो उदाहरण लेकर आए हैं कि दौड़ का तस्वीर हमें दौड़ में हम दौड़ रहे हैं। And in fact, he mentions here things can stop us from winning the race, sin and anything that will hinder us. और यहाँ पर जो है हमारा ध्यान खींच रहा है परमेश्वर की वो चीजें हमारी दौड़ दौड़ने में जो रुकावट बन सकती है, पाप हो सकता है या इतर कुछ जैसे रुकावटें हो सकती है। So pain we're talking about today obviously could be physical pain, it could be hunger, it could be suffering. और जब हम दर्द के बारे में बात करें, शारीरिक दर्द हो सकता है, ये भूख हो सकती है या अलग पीड़ा हो सकती है। But it is more commonly emotional pain, struggles with other co-workers in the body of Christ, right? Backbiting, all these things that can happen because we're human beings.
और ये जो है ये ऐसी सामान्य दर्द भी हो सकते हैं जो भावनाओं से जुड़े हो सकते हैं, जो हमारे मसीह देह में जब साथ में जब मिलकर काम कर रहे हैं उसके उससे जुड़ी हुई, और पीठ पीछे बातचीत करना, और इससे आने वाला दर्द भी हो सकता है। Sometimes we see even pastors or leaders that fall into sin, and that's heartbreaking. And sometimes the pain is because we feel very alone in ministry. और कभी ऐसा भी होता है कि कोई पासवान या अगुवा जो है अपनी सेविका में पाप के कारण गिर गया है, और इससे दर्द होता है। या कभी ऐसा भी होता है कि सेवकाई में हम अपने आप को बहुत ही अकेला पाते हैं, इस कारण भी दर्द होता है। In this analogy of sports, I thought this was fun from Muhammad Ali boxing. He said, if you don't lose if you were knocked down, you lose if you stay down. और खेल का उदाहरण लेते हुए मुझे लगा कि ये उदाहरण बहुत ही बढ़िया है जो मोहम्मद अली के द्वारा है। वो कहते हैं, आप हारते तब नहीं है जब आप नीचे गिरा दिए जाते हैं, आप तब हारते हैं जब आप नीचे पड़े रहते हैं। And for some reason in boxing, we know, of course, they're going to get knocked down, they're going to get bruised, and we expect that in boxing. और कुछ अब देखते हैं कि ये तो सरल बात है कि बॉक्सिंग में हमें मार पड़ने वाली है और हम नीचे गिराए जाने वाले हैं। But working in the church, in the body of Christ, in all these denominations, we don't usually expect to get knocked down and to get bruised and everything. So we're surprised. और लेकिन कलीसिया में काम कर रहा मसीह की देह में और अलग अलग पंथों के साथ, और हम कभी एक अपेक्षा नहीं करते हैं कि हमें वहां से मार पड़ेगी और दर्द मिलेगा। There was a point for me where I actually hit burnout after about 30 years in ministry, so about 6 years ago. और कुछ 6 साल पहले ऐसा हुआ कि 30 साल की सेवकाई के बाद में मैंने अपने आप को पूरी तरह से खर्च कर दिया था, और पूरी तरह से थक चुकी थी गहराई से। I was just emotionally drained, and I felt that I carried more weight and responsibility than I could handle for way too many years. And I felt like I just couldn't keep going. और कह रही कि मैं भावनात्मक रूप से पूरी तरह से खर्च हो चुकी थी, मेरे कंधों पर इतने इस जिम्मेदारियों को इतने सालों तक उठाते चल रही थी, उसका भार मैं नहीं सह पा रही थी, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, ऐसा वो उस अवस्था थी मेरी। And I almost walked away from this ministry completely. और लगभग मैं इस सेवकाई से लगभग दूर ही हट चुकी थी या हटने वाली थी। Many of you know the story that my husband was by my side and my kitty just cried with me. There were hours where I cried and my cat would just actually meow cry with me. और हमें से कई लोग जानते हैं कि मेरे पति मेरे साथ में थे और मेरे बच्चे मेरे साथ में मिलकर रो रहे थे, और मेरी बिल्ली जो वो भी साथ कर म्याऊं करते हुए रो रही थी। But instead of quitting, I decided to take a sabbatical or take a break. और इससे छोड़ने के बजाय मैंने तय किया कि मैं एक अवकाश के दौर में जाऊंगी, जहां पर ब्रेक लेकर मैं आराम करूंगी। So as I took a step back, I thought, okay, I'm going to find someone to manage things for me. And I trained them. It took me 6 months to train them and get everything going so I could take a break. और मैंने तय किया कि मैं कुछ कदम पीछे हटाने वाली हूँ, और ऐसा करने से पहले ऐसे किसी व्यक्ति को मैं तैयार करूंगी जो मेरे गैर हाजिर में जिम्मेदारी को उठाए हुए काम को आगे ले जाएंगे, और उन्हें तैयार करने प्रशिक्षण देने मुझे 6 महीने लगे। I ended up taking a full year off of the ministry. और मैंने सेवकाई से हटकर संपूर्ण 1 साल मैंने अवकाश में बिताया। But I learned actually that pain doesn't mean failure. और मैंने इस बात को सीख लिया कि दर्द का मतलब ये नहीं कि आप असफल हो चुके हो। And maybe I was knocked down, but I didn't stay down. I got back up. और शायद उस समय मैं नीचे गिरा दी गई थी, लेकिन मैं नीचे पड़ी नहीं रही, मैं उठ खड़ी हो गई। I wonder if some of you can relate to this and feel knocked down or feel like, I don't know if I can keep going. और शायद सोचती हूँ कि हम में से कुछ लोग शायद इसके साथ पहचान रखते होंगे कि आपको लग रहा है कि आपको नीचे गिरा दिया गया है, या आपको लग रहा है कि थक गए हैं, आगे नहीं बढ़ पाऊंगा अभी। So let's look at this. Number one in our sermon for you today is, it is painful. और संदेश में पहला आपके लिए जो मुद्दा है वो है, यह दर्दनाक है।
So there's really no earthly reason for us to teach in children's ministry because it's not easy, it's not glamorous, we don't get any fame. और बच्चों की सेवा में पढ़ाने का कोई सांसारिक कारण नहीं है, ना ही ये आसान या आकर्षक है, और इससे कोई प्रसिद्धि भी नहीं मिलती। It can be painful. It is a sacrifice. It's serving the church, and you're serving the parents of those children. ये दर्दनाक हो सकता है, ये बलिदान पूर्वक हो सकता है, या कलीसिया की सेवा करना होता है, या अन्य माता पिताओं की सेवा करना होता है। This is almost funny, right? For children's ministry sermon to say, it's painful, it's a sacrifice. It sounds almost opposite. और हमें ऐसा लगता है कि बच्चों की सेवकाई के लिए आप ये सब कह रहे हैं, दर्द भरा है, बलिदान पूर्वक है और सेवा करना है, लेकिन अब दिखाई पड़ता है कि इसका उल्टा विपरीत ही है। But I just want to encourage us not to avoid the pain. और मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि आप जो है इस दर्द से अपने आप को न बचाएं। Athletes that run long distances need more tenacity than just pure talent. और लंबी दूरी तक दौड़ने वाले एथलीटों को उनके प्रतिभा से ज्यादा दृढ़ता की जरूरत होती है। Tenacity means not giving up even when things get tough. और दृढ़ता का मतलब है कि जब चीजें कठिन हो जाती है तब भी हार न मानना। It means determining, I'm going to stick with it until I succeed. और इसका मतलब है कि ये तय कर लेना कि मैं टिका रहूंगा, डटा रहूंगा जब तक कि मैं सफल न हो जाऊं। This is so much more important than having talent. और सिर्फ प्रतिभा होने से बढ़कर ये कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। I tell you, if I learned anything in 36 years, it's this. You might be a great singer, but faithfulness wins out over being a great singer every time. और मैंने इस बात को ये पिछले 36 सालों में अगर मैंने कुछ सीखा है तो ये सीखा है कि यदि आप जो है बहुत ही बढ़िया गाने वाले गायक हो सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा बढ़कर विश्वास योग्यता है, वो ऊंचा होता है। So how do we build this faithfulness and tenacity that's needed in children's ministry? और ये जो विश्वास योग्यता या दृढ़ता को हम किस तरह से बच्चों की सेवकाई में अपने आप में हम जोड़ सकते हैं। So this quote here from Mary Wittenberg says, best athletes don't avoid pain, they face it and overcome it. और मेरी विटनबर्ग के द्वारा उन्होंने ये जो वक्तव्य दिया है वो ये कि सर्वश्रेष्ठ एथलीट दर्द से बचते नहीं है, बल्कि उसका सामना करते हैं और उस पर विजय प्राप्त करते हैं। So we're going to face that there is pain, and we're not going to avoid it. तो हम जो है इस बात को जान ले कि दर्द होने वाला है, उसका हम सामना करेंगे, हम उससे बचने वाले नहीं है। Okay, point number 2, children's ministry is needed. और दूसरा यहाँ पर दिया गया है कि बच्चों की सेवकाई इसकी जरूरत है। Barna studies show that only 10% of today's youth are resilient disciples. और बारह अध्ययन से पता चला है कि आज के युवाओं में से केवल 10% ही लचीले शिष्य हैं। One of my favorite quotes from the coaching program is when they mention the president of Coca-Cola and how he says we have to do all these announcements for Coca-Cola because there's new children every year that have never had a Coke. और मुझे एक मेरा बहुत ही प्रसिद्ध जो है शब्द जिसके बारे में मैं कहती हूँ कि जो कोका कोला के जो प्रेसिडेंट है वो कहते हैं कि हमने बार बार कोका कोला के बारे में बयान करते रहना है, बताते रहना है, क्योंकि हर साल करते रहना है, क्योंकि नए बच्चे जन्म ले रहे हैं जिन्होंने कोका कोला के बारे में पहले कभी सुना ही नहीं है। Right? So what's a resilient disciple? Why is there so few strong disciples coming out of our children's ministry? और एक लचीला शिष्य क्या है, और क्यों हमारे बच्चे के सेवकाई में से मजबूत शिष्य उभर कर नहीं निकल रहे हैं। So there was a campaign in the United States a while back called See You at the Pole. और यहाँ पर अमेरिका में जो है हेडन फिलिपर्ट के द्वारा कहा गया था एक कि आपसे ध्वज स्तंभ पर मिलते हैं। So basically at the flagpole, the teachers were not allowed to pray or at school, at public school, or bring their Bibles or anything. So the young, the students were allowed to pray without any teachers, and they gathered at the flagpole to pray together.
और ऐसी बात हुई थी इस पाठशाला में जो लेक मिनेसोटा की, वहां पर जो है वहां पर जो टीचर थे उन्हें प्रार्थना करने की अनुमति नहीं थी, बाइबल साथ में लेकर आने की अनुमति नहीं थी। तो बच्चों ने ऐसे तय किया कि वो जो ध्वज स्तंभ है वहां पर इकट्ठा होंगे और वहां पर प्रार्थना करेंगे। And one day there was a prayer meeting at the flagpole, and Hayden, you can see him here in this picture, arrives to pray, and there's no one with him. और एक दिन ऐसा हुआ कि यहाँ पर हेडन जो है यहाँ पर ध्वज के स्तंभ के पास में आकर खड़ा हो गया और वो प्रार्थना करने, और उसने देखा कि कोई और नहीं है उसके साथ में। And you know that many of us, if we arrived at the flagpole and there was no one there, we would turn around and leave and think, okay, there's no prayer meeting today. और हेडन के जैसे अगर हम उस जगह पर अपने आप को पाते कि कोई आया नहीं है वहां पर, तो आप देखते और कहते अरे कोई नहीं आया है तो चलो निकल पड़े, हम आज प्रार्थना सभा नहीं होगी। But he said, well, I'm the only one here, so I'll pray. So he just stood there and prayed at the flagpole by himself. और उसने कहा अरे कोई नहीं है लेकिन मैं यहाँ पर हूँ, तो वहीं पर उस स्तंभ के पास खड़ा हो गया और उसने प्रार्थना करना शुरू की। Someone was driving by and took a picture of him and posted it on Facebook. और कोई को तो वहां से गुजर रहा था और उन्होंने उसकी तस्वीर खींची और फेसबुक पर डाल दी। And they were allowed legally to do this, the students at school, so he wasn't in trouble, but all of a sudden he became famous. और ये ऐसा करने के लिए उसे अनुमति थी क्योंकि दूसरा विद्यार्थी था, और तुरंत ही इस कारण वो प्रसिद्ध हो गया, मशहूर हो गया। And he just went viral all over the place, that he had the resiliency to stay and pray alone. और तुरंत वहां पर उस पूरे इलाके में वायरल हो गई उसकी तस्वीर, और ये दर्शाती हुई कि उसके अंदर वो लचीलापन, मजबूती थी कि वहां पर डटे रहकर वो अकेले प्रार्थना करा। So now I want to share with you this graph from Ed Stetzer, from the executive director of the Billy Graham Center. और मैं आपके सामने ये जो एक आकृति दिखाना चाहती हूँ, और जो बिली ग्राहम सेंटर के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है एड स्टेट्सर, उनके द्वारा है। So I have it both in English and Hindi, but what I want to share with you is a big change we're seeing. और मेरे पास हिंदी अंग्रेजी दोनों में, लेकिन मैं आपसे जो बताना चाहती हूँ वो ये है कि एक बड़ा बदलाव जो हम जिसे देख रहे हैं, And it's basically a cultural divide that's switching as people are less resilient and less strong in their faith. और ये जो सांस्कृतिक जो दूरी हो रही या दरार जो हो रहा है, विभाजन, जहां पर जो है लोग ज्यादा से ज्यादा कम लचीले होते जा रहे हैं और कम मजबूती में चल रहे हैं। Okay, so I'll share it in English and then I'll pop to the Hindi and maybe go back and forth a little bit. So you can see here in the past, we had non-Christians at the top, people who said, no, I don't believe in Jesus at all. I don't believe in God, one God. और अतीत में अगर हम देखते हैं यहाँ पर जो है, यहाँ गैर मसीही है और वे कहते हैं कि मैं परमेश्वर में विश्वास नहीं करता हूँ या किसी एक परमेश्वर में विश्वास नहीं करता हूँ। And then after this cultural divide, we had three different groups of Christians. We had cultural that were like, yeah, I kind of do. We had congregational ones. Basically what they're trying to say there is people that just kind of went to church once a month but they didn't participate much. And then Christians of conviction. और फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि हमारे बीच में सांस्कृतिक जो ईसाई थे, सांस्कृतिक रूप से, और दूसरे जो है धर्म संघवादी ईसाई। इसका मतलब कि ऐसे लोग जो है जो कह रहे हैं कि हाँ महीने में एक बार मैं सभा में जाता हूँ, चर्च में जाता हूँ, और फिर बाद में हमारे पास दृढ़ विश्वास वाले मसीही जन। So what they're seeing is a change to where the cultural Christians and the I'll go to church once a month after COVID has changed. और उन्हें ये दिखाई पड़ रहा है कि जो सांस्कृतिक मसीही थे, ईसाई थे, या जो चर्च में जो महीने में एक बार जाते थे, इनमें बदलाव हो रहा है। So now they're closer to the non-Christians. They're closer to, well, we kind of go to church sometimes with no conviction. और ये कोविड के बाद खास हुआ है, और ये बदलाव होकर ये ज्यादा से ज्यादा जो गैर मसीह की ओर बढ़ रहे हैं, उनके अंदर कोई मान्यता, कोई विश्वास नहीं है। So you can see for the future that all three of those groups, the non-Christians, cultural, and just church Christians that go once in a while,
are all together, and then we have our big divide. और फिर हम देखते हैं कि जैसे आगे समय भविष्य में ऐसी स्थिति हो जाएगी कि वो तीनों जो है समूह के लोग वो एक साथ हो जाते हैं, जहाँ पर गैर मसीह है, महीने में एक बार जाने वाली ईसाई और सांस्कृतिक एक साथ जुड़ गए हैं, और नीचे दृढ़ विश्वास वाले मसीह, इनके बीच में एक बड़ा विभाजन है। And this might seem like a small deal, but what the studies are saying is it's a big deal. It's changing the way we go to church. और ये देखने के लिए बहुत ही छोटी बात दिखाई हो रही होगी, लेकिन जो संशोधन किया गया है उसके द्वारा कहा जा रहा है ये बहुत बड़ी बात है लोगों का कलीसिया या चर्च में जाने के संदर्भ में। All right. Of these two candles here, this tall candle and the short candle, which is the child and which is the adult? और यहाँ पर जो तस्वीर है मोमबत्ती की, यहाँ पर जो लंबी मोमबत्ती और एक छोटी है, यहाँ पर सवाल है कि कौन सा बच्चा है और कौन सा वयस्क है। यहाँ पर We would normally have the tall one be the adult, right? And the short one is the child. और सामान्य रूप से हम ये कहें कि जो ऊंची मोमबत्ती है, हम उसे कहते हैं कि वो वयस्क होगा, और ये जो छोटा है वो बच्चा होगा। Yeah, I see Rachel has the first answer here. The tall one is the child. और रेचल के द्वारा ये सबसे पहला जवाब आ गया है, वो कह रहे हैं कि जो लंबी मोमबत्ती है वो बच्चा है। Yeah, because of course it's not been burnt out very much, and those of us who are older, we've burned our candle all the way down to the bottom. और क्योंकि वो जो मोमबत्ती कुछ जली नहीं है, लेकिन हम में से जो है, हम ऊपर जो मोमबत्ती जल जल के हम नीचे आकर छोटे हो गए हैं। All right, our point number 3 is children's ministry works. और हमारा तीसरा जो मुद्दा है वो है बच्चों की सेवकाई, ये काम करता है। We might ask ourselves, am I really making a difference? Is Sunday school still operating? Do we really have an impact? और हम अपने आप से सवाल पूछते होंगे, क्या मैं सचमुच कोई बदलाव ला रहा हूँ? क्या संडे स्कूल अभी भी चल रहा है? क्या हम सचमुच कोई प्रभाव भी ला रहे हैं? So I have a few stats for you. तो मेरे पास आपके लिए कुछ आंकड़े हैं। 43% came to Christ before the age of 12. That's the statistic. 43% of people. और यहाँ पर आंकड़े आपके लिए कि 43% लोग 12 वर्ष की आयु से पहले ही मसीह को अपना लेते हैं। And 3/4 or 75% of Christians came to faith before the age of 21. और हम देखते हैं कि 3/4 या तो 75% जो है 21 वर्ष की आयु से पहले ही विश्वास में आ जाते हैं। And I think many of you know, right? Children's ministry is where we can win the hearts towards Jesus easier. और मुझे लगता है कि हम में से कई लोग जानते हैं कि बच्चों की सेवकाई में वो आसान होता है कि बच्चों के हृदय तक पहुंचना और उन्हें यीशु मसीह की ओर ले आना। And 29% of children coming to Christ mentioned children's ministry as a factor. They mentioned church. और मसीह के पास आने वाले 29% बच्चों ने बच्चों की सेवकाई को एक कारक के रूप में उल्लेख किया कि बच्चों की सेवकाई के द्वारा वे मसीह में आए। So yes, children's ministry works. तो हाँ, ये बच्चों की सेवकाई काम करता है। It may not look the same as it did in the past, right? Now we have so many more digital resources, but it still makes a very big difference in many lives. और हम देखते हैं कि अतीत में जैसे दिखाई पड़ता था वैसे नहीं दिखाई पड़ रहा हो, लेकिन आज हमारे पास भी इतने डिजिटल संसाधन है और वो आज भी जीवनों में बदलाव लाता है। Okay, and now let's look at our fourth point. Is it worth it for me? और हम चौथी बात की ओर देखेंगे, क्या ये मेरे लिए उपयुक्त है? So we have seen it's painful, it's needed, and it does work. और हमने देखा है कि ये दर्दनाक है, इसकी जरूरत है और ये काम करता है। But why should I keep working in children's ministry? And this is all across the world. और ये जो कहते हैं कि मैंने क्यों बच्चों के सेवा में काम करना जारी रखना चाहिए, और ये सारे जगत भर में है। This is every denomination. Most of us are serving in our local church, and we are all part of a lot of different denominations. और हम लोग जो है ज्यादातर हमें से ज्यादा अपने स्थानीय कलीसिया में काम करते हैं, और हम सभी जो है विभिन्न पंथों से हैं और अलग अलग डिनोमिनेशन से हैं।
And some of us also, apart from serving in our church, we also serve in a ministry that also serves children in some way. और हम कलीसिया में काम करने के साथ साथ हम दूसरी इतर सेवकाई में भी अपना काम कर रहे हैं या सेवा कर रहे हैं जो बच्चों के बीच काम कर रहा है। And I know some people that actually serve in 2 different ministries and in their local church. So they're just very active serving in the body of Christ. और मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ कि दो अलग अलग प्रकार की सेवकाई में काम कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने स्थानीय कलीसिया के साथ में भी काम कर रहे हैं, मिलकर वो अपनी सेवकाई कर रहे हैं। So Awana Ministries is a large ministry around the world, and they've researched and determined that church's main challenge in discipling children is a shortage of volunteers. अवाना मिनिस्ट्रीज ने शोध करके ये निष्कर्ष निकाला है कि बच्चों को अनुशासित करने में चर्च की मुख्य चुनौती स्वयं सेवकों की कमी है। It's actually you and me being willing to serve. That's the biggest challenge we have right now. और वो आप और मेरे जैसे है जो तैयार है सेवा करने के लिए, और ये आज सबसे बड़ी चुनौती है इस वक्त। Romans 2:6 says God will reward each person according to his works. रोमियो 2:6 कहता है परमेश्वर हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। We know this, right? We know that we serve God when we're serving the children. और हम जानते हैं इस बात को कि जब हम बच्चों की सेवा कर रहे होते तो हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। But sometimes if you have a child there, I remember very vividly when I had a child who was autistic and he was yelling at me and spitting on me. और आपको पता है कि जब बच्चे जो है, मुझे याद है एक स्थिति जब बच्चा जो विकलांग जो है मेरी और जोरों से चिल्ला रहा था और मेरे ऊपर थूक रहा था। I remember when he spat on me, I thought to myself, what am I doing here? और मुझे याद है जब उसने मुझ पर थूका, मैंने अपने आप से ये कहा, मुझे याद है कहते हुए अपने आप से कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। We definitely have to always remember, oh, I'm doing this for God. I'm doing this for God. I'm doing this for God. और हमने जरूर अपने आप को याद दिलाना, मैं परमेश्वर के लिए कर रही हूँ, मैं परमेश्वर के लिए कर रही हूँ, परमेश्वर के लिए कर रहा हूँ। Another verse I want to share with you is Luke chapter 12, where he says, okay, I'm going to tear down all my barns and build bigger ones because I've got to store all my surplus grain. और अगला वचन आपके साथ बांटना चाहती हूँ लूका के 12वां अध्याय से। और उसने कहा मैं ये करूंगा, मैं अपने गोदामों को तोड़कर उनसे बड़ी गोदाम बनाऊंगा। Then I'll say to myself, I have plenty of grain. Take life easy, eat, drink, and be merry. और वहां मैं अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण को कहूंगा कि प्राण तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी सुख से रहे। But then God said to him, you fool, this very night your life will be demanded from you. Then who will get what you've prepared for yourself? परंतु परमेश्वर उसने उससे कहा, हे मूर्ख, किसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। So I have this question for us, right? Am I a fool? तो मेरे पास हम सबके लिए सवाल है कि क्या मैं मूर्ख हूं। God asks us to remember that we're not here for earthly money or earthly credit or respect from other people. और परमेश्वर चाहता है कि हम याद रखें कि यहाँ पर हम पृथ्वी के पैसे के लिए या दूसरों की वाहवाही और दूसरों की शाबाशी के लिए नहीं है। But as verse 21 says, we want to be rich toward God. It says here, this is how it will be with whoever stores up things for themselves, but is not rich towards God. लेकिन 21वां वचन हमसे कहता है कि हमने परमेश्वर के प्रति धनी या धनवान होना है। वचन कहता है ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। So our time is short. Here's another verse I want to share with you from 1 Corinthians chapter 7. तो हमारा समय यहाँ पर कम है, और एक और वचन आपके साथ बांटना चाहती हूँ, पहले कुरिन्थियों का 7वां अध्याय। What I mean, brothers and sisters, is that the time is short. From now on, those who have wives should live as though they do not, those who mourn as though they do not, those who are happy as though they were not, those who buy something as if they were not theirs to keep, those who use the things of this world as if
not engrossed in them, for this world in its present form is passing away. हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि समय कम किया गया है, इसलिए चाहिए कि जिनकी पत्नी है वे ऐसे हो मानो उनकी पत्नी नहीं, और रोने वालों ऐसे हो मानो रोते नहीं, और आनंद करने वालों ऐसे हो मानो आनंद नहीं करते, और मोल लेने वालों ऐसे हो कि मानो उनके पास कुछ है ही नहीं। And we know, right, that a lot of times we are experiencing a fulfilling experience when we work with children. We और हम feel जानते हैं fulfilled. कि और हम जानते हैं कि कई बार जो है, जब हम बच्चों के बीच में सेवकाई कर रहे काम करते समय हमें एक संतुष्टि का अनुभव होता है। We can see the joy on a child's face, and we go, oh, they're learning about Jesus for the first time. It's fulfilling. और जब एक बच्चे के चेहरे को देखते हैं और हम कहते हैं, ओ पहली बार ये यीशु मसीह के बारे में सीख रहा है ये, और देख के बहुत ही संतुष्टि मिलती है। I'll never forget when I was serving in Mexico, and I was doing a VBS out in this town in La Huerta Caborca. और जो है मैं कभी नहीं भूलूंगी कि जब मैं वीबीएस में मैक्सिको में सेवा कर रही थी और वहां पर वीबीएस का कार्य चला रही थी वहां पर, और उस क्षेत्र में। So we were outside, it was just dirt, and it was hot, like 38 degrees, and we had kids coming from a gang. और हम वहां पर थे मिट्टी पर, और बहुत ही गर्मी थी वहां पर, और हमारे पास ऐसे बच्चे आ रहे थे, वो किसी गैंग से निकल कर आ रहे थे। But I could see we were making real progress by Wednesday, and I was excited that we were ministering to these kids that had really not heard about God before. और हम बुधवार तक की अपनी सेवकाई चला रहे थे, और मैं बहुत ही उत्साहित थी इसे सोचते हुए कि हम इन बच्चों की सेवकाई करें जिन्होंने परमेश्वर के बारे में कभी नहीं सुना है। But on Wednesday morning, none of the children showed up for VBS. लेकिन बुधवार की सुबह को कोई भी बच्चा वहां पर वीबीएस में उपस्थित नहीं हुआ। And I stood there just with my heart sinking. What happened? और मैं वहां पर खड़ी रही, और मेरा हृदय अपने आप में नीचे निराशा में गिर रहा था, सोचते हुए कि क्या हुआ, क्या हो रहा है। Did I do something wrong? Where are all the kids? Am I making a difference at all? क्या मैंने कोई गलती की है? कहाँ पर ये सारे बच्चे? क्या मैं कोई प्रभाव या असर ला भी रही या नहीं? But an hour later, I hear the footsteps, and here come the kids running in. और लेकिन 1 घंटे के बाद में मुझे पैरों के कदमों की आवाज है, और यहाँ पर बच्चे दौड़ कर आ रहे हैं। They're out of breath, they're laughing, they're shouting, and they just showed up. और वो वहां पर जब सांस फूलते हुए चिल्ला रहे हैं, आवाज कर रहे हैं, और वहां पर उपस्थित हो गए। So I'm like, why did you all come late? और मैं उससे पूछने लगी कि आप लोग इतने देरी से क्यों आए? They were so excited to tell me. Some of them had been in the streets fighting in the morning, and the police grabbed them and threw them in jail. और वो इतने उत्साह से मुझे बता रहे थे कि उनमें से कुछ लोग जो है रास्ते पर आपस में लड़ाई कर रहे थे, और पुलिस ने आकर उन्हें उठाकर जेल में डाल दिया। So their friends waited outside the police station for them, and they were all down there at the police station. तो उनके जो सभी दोस्त थे वहां पर, वो पुलिस स्टेशन के पास में उनका इंतजार करते रहे, और वहां पर रुके रहे सभी के सभी। And guess what? When they got released, where did they all run? और कल्पना कीजिए कि जब उन्हें जेल से छोड़ दिया गया तो वो किस दिशा में दौड़े? Straight to VBS. सीधे वीबीएस की ओर दौड़ कर आए। It hit me just very hard. They could have run anywhere, but they chose to run to church. और इस बात ने मेरे ऊपर बड़े जोरों से प्रभाव किया है। वे वहां पर जेल से निकल कहीं और भी वो दौड़कर जा सकते थे, लेकिन वे कलीसिया की ओर दौड़कर I आए। thought, oh man, they're feeling loved, they're feeling accepted, and in the middle of this chaotic life where they're fighting all the time and getting thrown into jail, they are running to church to hear about Jesus. और उन्हें महसूस हुआ, प्रेम किया गया महसूस हुआ है, और स्वीकार किया गया महसूस हुआ, और ऐसी गड़बड़ी से भरे जीवन में वहां पर जेल में डाल दिए जाने की इस सारी स्थिति में से निकलकर वो दौड़ कर आ रहे कलीसिया की ओर यीशु के बारे में सुनने के लिए। And sometimes, the pain is hard. That VBS was hard for me to do. और कभी आपको महसूस होता होगा कि वो जो बीबीएस चलाना मेरे लिए बहुत ही कठिन होता है, दर्द होता है। But sometimes, just when we think no one's listening and it's not going anywhere, God can show us actually you're making a difference.
और अक्सर ऐसा जब आप सोच रहे होते कि कोई नहीं सुन रहा है, आप कोई असर नहीं ला रहे हो, और तब परमेश्वर आपको दिखाता है कि कुछ हो रहा है, लोग सीख रहे हैं। In fact, it's all part of the process, that messiness of ministry and the pain that goes along with serving God. और ये सब इस प्रक्रिया का भाग है कि परमेश्वर की सेवा करते समय जो दर्द से गुजरना पड़ता है, और जो एक तरह से कष्टदायक या जो गड़बड़ी दिखाई पड़ती है, ये सब भाग है। So when we need to focus on enduring the pain, तो हमने दर्द सहने की ओर अपना ध्यान केंद्रित करना है। so this is from Dr. and Reverend Samuel Chand. He's actually from India. और ये डॉक्टर रेवरेंड सैमुअल चांद के द्वारा दिया गया ये उनका एक वक्तव्य है, और वे भारत से हैं। And he says, to persevere, we need a vision for the future that's bigger than our pain. और वो कहते हैं लगातार आगे बढ़ने के लिए हमें भविष्य के लिए एक ऐसी दर्शन की आवश्यकता होती है जो हमारे दर्द से कहीं ज्यादा बड़ा है। We may not see it clearly, and we may not like the process of getting there, but we have to be convinced in the depths of our hearts that enduring the pain will be worth it. और हमें इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं, और हमें वहां पहुंचने की प्रक्रिया पसंद नहीं आती होगी, लेकिन हमें अपने दिल में गहराई में यह विश्वास होना चाहिए कि दर्द सहना एक दिन मूल्यवान होगा। And in fact, Reverend Chan wrote a book on pain in ministry. It's really good. I recommend it. और वैसे देखें तो इन्होंने किताब भी लिखा है, सेवकाई में दर्द, और मैं आपको सिफारिश करूंगी आपके लिए कि इस किताब को पढ़ें। And he talks about how we need to raise the threshold of pain, practice being able to handle more pain. और वो बात करते हैं किस तरह से हमने दर्द के जो स्तर को और ऊंचा करना है। वे कहते हैं कि दर्द की सीमा को बढ़ाने में सक्षम बनाता है, ताकि हम साहस और आशा के साथ प्रतिक्रिया कर सके। But just like in sports, I was thinking of a soccer goal. They have to run, they have to train, they have to go through a lot of pain, but they're all doing it for that future. I'm hoping to get a goal in the game at football. और हम देखते हैं जिस तरह से खेल के अंदर, सॉकर खेल में, फुटबॉल में जो है वे दौड़ते हैं और अपनी अभ्यास करते रहते हैं, दौड़ते दर्द से गुजरते हैं वे, लेकिन उनका एक लक्ष्य होता है कि मुझे फुटबॉल के खेल में मुझे गोल मारना है। So it's delayed gratification. और इसे देखें तो ये विलंबित संतुष्टि होगी। So I want to share with you just this little video about these kids who are practicing delayed gratification. और मैं आपके साथ में वीडियो साझा करना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो बच्चे यहाँ पर ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि किस तरह से देरी से संतुष्टि मिलने के बारे में। Okay, but in the video they use marshmallows, but it's just any candy or any chocolate. I got here a chocolate. और वहां पर इस वीडियो में हम देखते हैं कि मार्शमेलोस का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो किसी भी मिठाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे सामने मेरे हाथों में मिठाई है या चॉकलेट है। So anything that we would want, right? So in this movie, in this little video clip, it's a white marshmallow, but it's a candy. और कोई भी चीज हो सकती है जिसकी हम चाहत रखते हैं कि हमें चाहिए है अभी इस वक्त, और इस वीडियो में सिर्फ मार्शमेलो रखा गया है। आप किसी भी मिठाई के बारे में आप सोच सकते हैं उसकी जगह। Can you hear the audio? Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. I'm gonna go do something and then I'll come back. It smells yummy. It smells really good.
it's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. All right, so I'm gonna leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need them. Oh, that's funny. I think it's so funny to watch those kids try not to eat it. और ये बढ़िया बहुत ही हंसाने वाली बात है कि बहुत ही अजीब लग रहा देखकर कि ये जो बच्चे जो अपने आप को रोक रहे हो खाने से रोक रहे हैं देखकर So that's a great example of waiting to receive a bigger reward. और ये बहुत ही बढ़िया उदाहरण है कि बढ़िया बेहतर पुरस्कार पाने के लिए इंतजार करना So I got 2 chocolates here. Basically, you can have one now, or if you wait, you can have 2. और मेरे सामने 2 यहाँ पर चॉकलेट है और आप एक अभी ले सकते हो लेकिन अगर आप इंतजार करोगे तो आपको दूसरा भी मिलेगा And I think we know that what we're doing here on earth is not for here. We are doing it for a reward that we will get in heaven. और मैं जानती हूँ कि हम इस बात को जानते हैं कि हम यहाँ पर जो सेवकाई कर रहे हैं यहाँ पर ये इस पृथ्वी पर हमें उस पुरस्कार के लिए जो हमें आगे स्वर्ग में मिलने वाला है And we endure the pain of training, of learning, so we can win that race. और तो हम दर्द को सहते हैं और प्रशिक्षण पाते हुए दर्द को सहते हुए जिससे कि हम उस दौड़ को जीत सके In fact, like for the Olympics, they have to train for 4 years really hard every day. और देखिए उदाहरण के लिए ओलंपिक्स के लिए जब वो अपने आप को प्रशिक्षण देते हैं ट्रेनिंग देते हैं अपने आप को उन्हें हर रोज 4 साल के लिए उन्हें अपने आप को ट्रेनिंग देना होता है And then sometimes in that first match, they work really hard, but sometimes they lose. So they lose after training for 4 years. और कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनकी पहली दौड़ में जो है वे हार जाते हैं जीत नहीं पाते और 4 साल की इतनी कड़ी ट्रेनिंग करने अभ्यास करने के बाद भी वो हार जाते हैं But we're not going to lose because the King of Kings has already won the battle for us. और लेकिन हम जो है हम हारने वाले नहीं हैं क्योंकि राजाओं के राजा ने हमारे लिए पहले से ही विजय हासिल कर दिया है But we could get knocked down and we could give up. लेकिन हम जो है गिरा दिए जा सकते हैं और हम हार भी मान सकते हैं In fact, the enemy is constantly attacking us, trying to get us to quit. और वैसे देखे तो शत्रु जो है हर वक्त हमारे ऊपर हमला करता रहता है जिससे कि हम हार मानकर रुक जाएं We've had an interesting year this year as we've been struggling. We're trying to kick off the Brazil branch and we're trying to kick off the Telugu language.
और हम जो है वर्ष की शुरुआत में काफी संघर्ष से गुजर रहे अब तक, क्योंकि हम जो है ब्राजील में एक नई शाखा खोलने के प्रयास में है और तेलुगु भाषा में भी कार्य करने के प्रयास में है। We've struggled in many ways, from car accidents to cell phone crashes to health problems. In lots of ways, we've been struggling. हम अलग अलग क्षेत्रों से हमें संघर्षों का सामना करना पड़ा है, गाड़ी का या तो अपघात हुआ या मोबाइल खराब हो गया, अलग अलग तरह से संघर्ष में से गुजरे हैं। And I've been working at trying to raise the funding, the money, and it's so much work, and I'm only halfway there. और मैं जो है पैसों को उभारने की कार्य में भी जुड़ी हुई हूँ और कितना सारा काम है, और मैं अब तक तो सिर्फ उसका आधे भाग में ही मैं को पूरा कर पाई हूँ। One of the pains of children's ministry, right, is there's never enough money for the ministry we want to do. और बच्चों की का सेवकाई के लिए एक समस्या, एक दर्द ये होती है कि जो काम हम करना चाहते हैं उसे करने के लिए काफी पैसा उपलब्ध नहीं होता है। So as we're going through this, I also had personal attacks. I had someone who I trusted question my leadership. और इसके साथ ही साथ जो है मेरे साथ व्यक्तिगत मुझ पर हमला भी हुआ, जिसके साथ मैं जो मेरे साथ सेवकाई कर रहे थे, और उसने मेरे अगुवाई का एक तरह से विरोध किया। And I had someone say publicly, Christy's not led by the Spirit. और मैंने किसी से कहते हुए सुना कि क्रिस्टी जो है वो पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई नहीं पाती है। And you know, these words cut deep. और अब जानते हो ये शब्द हृदय की गहराई में जाकर चुभ जाता है, काटता है हृदय को। I didn't doubt my calling. I know God's called me to this. और मेरे बुलावे के प्रति मैंने कोई शंका नहीं जताई, मैं जानती हूँ परमेश्वर ने मुझे इसे करने के लिए बुलाया है। But of course, I could start wondering, am I leading the team the right way? Should I be doing something differently? और जरूर मेरे मन में सवाल आते होंगे कि क्या मैं मेरी टीम की सही रीति से अगुवाई कर रही हूँ, या मैंने कुछ और करना चाहिए, अलग तरीके से करना है। So there's all these struggles, right? Just internal struggles, fighting, and then trying to get money. और ये सब संघर्ष हो सकते हैं, भीतरी संघर्ष हो सकते हैं, बाहर के संघर्ष, तकलीफें और पैसों को खड़ा करना। But as this person was doubting my leadership, I just had to go to God personally and say, okay, God, minister to me. और जैसे जो व्यक्ति मेरे अगुवाई का विरोध कर रहे थे, मुझे परमेश्वर के पास जाना पड़ा और कहा, परमेश्वर ठीक है, मैं इस सेवकाई की अगुवाई कर रही हूँ। And God reminded me that leadership isn't about having all the answers. और परमेश्वर ने मुझसे कहा कि अगुवाई का मतलब ये नहीं कि आपके पास में सभी बातों का उत्तर है। It's about staying faithful. ये विश्वासु या विश्वास योग्य बने रहने के बारे में है। And the more we push into new territory and the more we take on these challenges, और जितना ज्यादा नए क्षेत्रों में कदम बढ़ाते आगे निकलते और जितना ज्यादा चुनौतियों का सामना करते हैं, the more resistance we're going to face. उतना ही विरोध का सामना हमें करना होगा। But resistance isn't always a sign to stop. Sometimes it's proof that we are right where God wants us. और जब भी हमारे सामने को रुकावट आती है और विरोध आता है, इसका मतलब नहीं है कि समय आ गया रुकने का, लेकिन वैसे इसके बजाय ये एक चिन्ह है कि हम उस जगह पर है जहाँ पर परमेश्वर चाहता है कि हमने रहना है, इसलिए विरोध आ रहा है। So if you have ever felt criticized, doubted, or worn down in your ministry, और यदि आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपका नुक्स निकाला गया, आपके बारे में बातें कही गई है, आप थके हुए महसूस किए हो, और आपको दर्द महसूस हुआ हो, I want you to know you're not alone. और मैं चाहती हूँ कि आप जानो कि आप अकेले नहीं हो। And don't let that pain shake your confidence in God. और उस दर्द को परमेश्वर में आपका जो आत्मविश्वास या परमेश्वर में जो विश्वास है, भरोसा है, उसे हिलाने न दो। No pain, no gain. कष्ट नहीं तो फल नहीं। Just like Rosie is sharing here in the chat, the boy had so much fun stuffing both marshmallows in his mouth. He was like, ah! और चैट बॉक्स में रोजी ने कहा है कि जो उस लड़के को कितना मजा आया, वो दोनों मैशमेलो को लेकर अपने मुंह में भर लिया, खुशी से करके खा रहा था। And that it will be us someday soon. We will be stuffing both marshmallows in our mouth. And God said it's going to be better than we can imagine.
और एक दिन ऐसा हुआ कि वैसे ही हम भी हो गए। एक दिन हम दोनों जो है मार्शमेलो के मुंह में कहेंगे ओ कितना बढ़िया है, और परमेश्वर कहेंगे कि इससे भी, इस आपके आपने कभी कल्पना नहीं किया, इससे भी ज्यादा बढ़िया होगा वो। Just reminding us our verse here. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses. हमें याद दिलाने के लिए वचन तो दिया गया, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, Let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। And then I have marked it here in yellow. And for the joy set before him. और यहाँ पर पीले रंग में मैंने दिया यहाँ पर, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था। Yeah, so he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. उसने क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। So this was delayed gratification for Jesus. और यीशु मसीह के लिए ये विलंबित संतुष्टि थी। He didn't just go through the pain of the cross just for the fun of going through the pain of the cross. No. और यीशु मसीह उस क्रूस के दर्द से सिर्फ गुजरने के लिए ही नहीं गुजरे, ये ऐसा नहीं था। He did it for the joy that was set before him. और यीशु मसीह ने वो दर्द से गुजरे उस आनंद के लिए जो उनके सामने, उनके आगे उनके लिए रखा था। So it's painful. और It's ये needed. Go ahead. ये दर्दनाक है, इसकी जरूरत है। It works and it's worth it. ये काम करता है और ये योग्य है, लायक है। Let's get more professional this weekend. तो इस सप्ताहांत में हम और पेशेवर बन जाएं। Because no pain, no gain. तो कष्ट नहीं तो फल नहीं। How many of you want to pray that today? Let's pray and say, God, I'm here. I'm not going to quit. I'm going to get back up. I want to serve you and I want to learn more and get professional. और हमें से कितने लोग हैं जो कहना चाहते हैं कि परमेश्वर मैं हार नहीं मानना चाहता हूं, मैं उठ खड़े होने वाला हूं, मैं और सीखने वाला हूं परमेश्वर, और आगे बढ़ते हुए मैं पेशेवर बनते जाने वाला, बेहतर बनूंगा। Will you pray that? Will you say that to Jesus today? क्या आप यीशु से आज ये कहेंगे? Yeah? All right, let's pray together. आइए मिलकर प्रार्थना करें। Actually, raise your hand right where you're at, if so Jesus can see you. तो Here I am, आप जहां कहीं Jesus. भी अपने हाथों को उठाए, क्योंकि यीशु आपको देख सके। Yeah. He can see you everywhere. Those of you on YouTube right now, even though we can't see you, Jesus can see you. और अब सभी को यीशु देख रहा है, और जो लोग YouTube पर है हम आपको देख नहीं पा रहे, लेकिन यीशु आपको देख रहा है। God, we just come to you right now and dedicate our lives to you once again. परमेश्वर हम इस वक्त आपके सामने आते और अपने जीवन को फिर से आपके सामने प्रभु हम समर्पित करते हैं। Lord, we've been through painful things. प्रभु हम बहुत ही दर्द भरे स्थितियों से गुजरे हैं। God, I just pray that you would help me get up and keep fighting the good fight. और परमेश्वर आप मेरी मदद करें कि मैं उठ खड़ा हो जाऊं और उस अच्छी लड़ाई को लड़ना जारी रखूं। And Lord, today I get up. और प्रभु आज मैं ऐसा करूंगी, मैं उठ खड़े होने वाला हूं। Use me, Lord, to reach children. प्रभु मेरा इस्तेमाल कर बच्चों तक पहुंचने के लिए, In my local church and in the ministry that I serve. मेरी स्थानीय कलीसिया में और सेवकाई में जिसमें मैं सेवा कर रहा हूं। Bring children to you right now in the name of Jesus. बच्चों को इसी वक्त यीशु मसीह के नाम में आपके पास लाते हैं। Lord, thank you for accepting me just as a weak human. प्रभु धन्यवाद एक कमजोर मानव के रूप में मेरा स्वीकार करने के लिए। And strengthen me today and strengthen me this weekend. और आज मुझे प्रभु सामर्थ से भर दे, और इस सप्ताहांत में मुझे तेरी सामर्थ से भर दे।
We pray this all in the name of Jesus. ये सभी हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में। Amen. Amen. आमेन आमेन। Woo! You ready to go pro? तैयार है पेशेवर होकर निकलने? Amen. Amen. आमेन। We've got so many fun things this weekend. We've got all these tracks that Angie Moses has put together. Oh my goodness. I am so excited to see some of these workshops. और हमारे लिए बहुत ही उत्साह से भरे हुए अलग अलग ऐसे सत्र सप्तांत में, और जिसे एंजी मोजेस ने तैयार किया है और इकट्ठा किया है, और कार्यशालाएं भी, और इसे देखकर मैं बहुत ही उत्साहित हूँ। We're gonna strengthen ourselves and learn new things from internet stuff, AI to puppets to so many things I wouldn't even know. Angie, you know all these things. और इतनी सारी चीजें हैं जिसे हम अपने आप को सशक्त करने वाले हैं। इंटरनेट से ली हुई चीज, एआई की है, पपेट के द्वारा है, कठपुतली, अलग अलग चीजों के बारे में कुछ चीजें मैं जानती भी नहीं हूँ, और एंजी मोजेस जानते हैं इनके बारे में। But I think what I want to say before I give up the microphone और माइक सौंपने से पहले मैं कहना चाहती हूँ is I'm so grateful to each speaker who said yes and has come to serve in this summit for children's ministry. और हर एक वक्ता जिसने हाँ कहा है इस समय बच्चों की सेवकाई के सम्मेलन में यहाँ पर सेवा करने के लिए, उनके प्रति मैं कितनी धन्यवादित हूँ, धन्यवाद कहती हूँ। I believe God is so pleased to see different denominations working together and different ministries supporting one another, and we all are doing different things all across the country. और ये जो परमेश्वर, मुझे मेरा मानना है परमेश्वर देख कितने प्रसन्न है कि अलग अलग लोग जो अलग अलग कलीसियाओं से, अलग अलग कलीसियाओं के परिवारों से, सेवकाई से और पंथों से मिलकर आ रहे हैं, और एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, और मिलकर सेवा कर रहे हैं बच्चों की सेवकाई को मजबूती दिलाने। And so we have some great speakers who will be sharing from their experience. And I just encourage you to go check out their channels, check out their websites, check out the ministry they're doing, because there are so many ways for us to get involved in the body of Christ. और हमारे बीच ऐसे बहुत ही बढ़िया वक्ता होने वाले हैं, और अपने अनुभव के द्वारा जो अनुभव से हमें सिखाने वाले, बात करने वाले, मैं प्रोत्साहित करूंगी कि जाइए उनके YouTube चैनल या उनकी जो वेबसाइट चेक करें, देखें, क्योंकि हम कई कितने जगहों से हम चीजों को सीख सकते हैं। मसीह की देह में से हम आशीष पा सकते हैं। And thank you to each speaker for joining with us and sharing your experience with us. We are so grateful. अब फिर से एक बार धन्यवाद हर एक वक्ता को जो हमारे साथ मिलकर अपने अनुभव के द्वारा हमसे बात हमारी भी साझा करने। बहुत बहुत धन्यवाद।